Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Real numbers, limits and continuity. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3. Bismillahirrahmanirrahim. Find the intervals on which the given function is continuous. Also find the points where it is discontinuous. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 22वां क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र -5 ओवर एक्स -1। गिवन फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्र -5 ओवर एक्स -1। भाई ऊपर वाले को हमने 5x कह दिया, नीचे वाले को सही x कह दिया अपनी सहूलत के लिए। क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर। भाई यहाँ पे जो मर्जी रखोगे आंसर निकलेगा। सिमिलरली साई एक्स इज कंटिन्यूस at every point of r। भैया ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। So fx being the quotient of two functions, continuous function is continuous at every point of r except x is equal to 1। भाई 1 के ऊपर क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। भाई एक्सेप्ट x is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे 1 रखते हो ना, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। भाई 1 - 1 का 0 तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, लिहाजा क्या होगा। So fx being the quotient of two continuous function is continuous at every point of r except x is equal to 1। So fx is continuous on real में से 1 निकाल लो। So fx is not defined at x is equal to 1। So x is equal to 1 is the point of discontinuity। लिहाजा x is equal to 1 क्या होगा, discontinuous होगा। Question 23 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। fx बराबर x over x का मोड। भाई एफ एक्स को एक्स ओवर एक्स मोड, ऊपर वाले को 5x कह दिया, नीचे वाले को सही x कह दिया। क्लियरली 5x इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। भैया ऊपर जो मर्जी रखोगे वो एग्जिस्ट करेगा। एंड साई x इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर। सो एफ एक्स बीइंग द क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ आर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0। भाई एक्सेप्ट जब 0 रखोगे ना भाई, तो समथिंग ओवर 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। लिहाजा so interval of continuity for fx is रियल में से 0 निकाल दो। भाई रियल में से 0 निकाल दो, या इसको यूं लिख लो -∞ to 0 विद ओपन इंटरवल्स। -∞ के ऊपर भी ओपन और भैया 0 के ऊपर भी ओपन। यूनियन 0 to ∞, 0 के ऊपर भी ओपन एंड इन्फिनिट के ऊपर भी ओपन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। fx बराबर sin x over x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 24 एफ एक्स बराबर है साइन एक्स ओवर एक्स। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स ओवर एक्स। भाई गिवन एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स, ऊपर वाले को 5x कह दिया, नीचे वाले को साई x कह दिया। अब आपको पता है हियर एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। भाई जब 0 रखोगे तो क्या होगा, समथिंग ओवर 0 का होगा इन्फिनिटी। सो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मोर एवर 5x हमारे पास है, sin x is continuous for every value of r and psi x हमारे पास is continuous at every point of r। So fx being the quotient of two continuous function is continuous on r except at x is equal to 0। So intervals of continuity of f is r में से 0 निकाल दें, r में से 0 निकाल दें, 0 पॉइंट निकाल दें, या -∞ to open interval, -∞ to 0 open interval, यूनियन 0 to infinity open interval। by 25 fx हमारे पास है tan x। fx हमारे पास है tan x। by tan x को लिखेंगे sin x over cos x। इसको भाई हम 5x over psi x कर देंगे। अब fx is not defined। भाई fx is not defined for x is equal to 2n plus 1 into pi by 2। भाई odd multiple of pi by 2 के लिए function is not defined। odd multiple of pi by 2 fx is not defined। fx is not defined। So x is equal to n plus 1 into pi by 2 are the points of discontinuity of f of x। Clearly 5x हमारे पास है, sin x is continuous at every point of r। So psi x हमारे पास है, cos x is two continuous is also continuous every point of r। So fx being the quotient of two continuous function is continuous at every point of r
except at x is equal to n plus 1 into pi by 2. So interval of continuity of रियल में से ये निकाल दो 2n plus 1 into pi by 2 भाई. so interval of continuity of रियल में से ये निकाल दो तो आपका interval of continuous निकल आएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 26. fx बराबर sin x if x is less than equal to pi by 4. fx बराबर है cos of x if x is greater than pi by 4. We know that sin x is continuous at every point of r. In particular, sin x is continuous at x is equal to pi by 4. Also, we know that cos x is continuous at every point of r. So fx is continuous at every point of r. So there is no point of discontinuity for fx, and interval of continuity of fx is r. रियल है या ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इन्फिनिटी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन प्रॉब्लम 24 to 34 एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. आपने चेक करना है कि भैया गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 या नहीं. वेदर द गिवन फंक्शन, अगर देखें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है. अगर कोई एक भी मिस होगी तो हम कहेंगे कि भैया फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. लेकिन हमारे पास जो रूल है ना वो सबके लिए एक जैसा है. वजन एफ एक्स बराबर है 1 plus 3x एंड होल पावर 1 over x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 बाई ई स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू 0. भाई एफ 0 हमारे पास है ई क्यूब गिवन. भाई एफ 0 हमारे पास क्या है ई क्यूब जी. भाई एफ 0 हमारे पास है ई स्क्वायर गिवन. सॉरी f0 हमारे पास ई स्क्वायर गिवन है. अब भैया लिमिट x अप्रोच टू 0 fx बराबर होगा लिमिट x अप्रोच टू 1 plus 3x एंड होल पावर 1 over x. जी भजन लिमिट x अप्रोच टू 0 1 plus 3x 1 over 3x एंड होल क्यूब. तो भैया ये ई क्यूब बन जाएगा. अब लिमिट x अप्रोच टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f of 0. सो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. भाई f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. भाई एफ एक्स हमारे पास है 1 plus x एंड होल पावर 1 over x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0. 1 if x इज इक्वल टू 0. भाई नो प्रॉब्लम. f0 हमारे पास है 1 गिवन बट लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x बराबर लिमिट x अप्रोच टू 0 1 plus x एंड होल पावर 1 over x ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये e के बराबर है. अब सिंस लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x इज नॉट इक्वल टू f of 0 सो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. देखें हमें 100% रिजल्ट चाहिए. फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करे और तीसरी बात दोनों आपस में क्या होनी बराबर हो. यहाँ पे वो डिफाइंड भी है एग्जिस्ट भी करे लेकिन आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन का होगा डिसकंटिन्यूस. लिहाजा f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. नो. क्वेश्चन नंबर 29 fx बराबर 1 plus 2x एंड होल पावर 1 over x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन बराबर ई स्क्वायर इफ x इज इक्वल टू 0. भाई f0 हमारे पास है ई स्क्वायर गिवन. अब लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x बराबर है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 plus 2x एंड होल पावर 1 over x. तो भाईजान इसको यूं करें लिमिट x अप्रोच टू 0 1 plus 2x एंड पावर 1 over 2x एंड होल स्क्वायर. तो भाईजान ये आपका ई स्क्वायर बन गया. अब सिंस लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x बराबर f of 0 सो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. लिहाजा f क्या होगा कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0. 30 क्वेश्चन e की पावर -1 over x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 1 if x is equal to 0. अब f0 is equal to 1 given है. अब लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर -1 over x स्क्वायर e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 over e की ताकत इन्फिनिटी 1 over इन्फिनिटी 0. सिंस लिमिट x अप्रोच टू 0 f x बराबर है नॉट इक्वल है f of 0 का क्योंकि इसका आंसर 1 है इसका 0 नॉट इक्वल. लिहाजा फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. By is not continuous at x is equal to 0. Question 31. fx बराबर e की पावर -1 over x 1 plus e की पावर 1 over x if x is not equal to 0 1 if x is equal to 0. जी f0 is equal to 1 given है. जी f0 is equal to 1 given. Limit x approaches to 0 f of x limit x approaches to 0 e की पावर -1 over x 1 plus e की पावर 1 over x. जी तो भजन लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ओवर e की पावर 1 over x इंटू 1 प्लस e की पावर 1 over x. भाई 1 over 0 क्या होगा इन्फिनिटी तो नीचे आएगा इन्फिनिटी तो 1 over इन्फिनिटी 0.
लिहाजा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है ई की पावर 1 ओवर एक्स के ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स के माइनस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, 1 इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ एक्स बराबर है ई की पावर 1 ओवर एक्स के ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स के माइनस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, 1 इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ जीरो हमारे पास है 1 गिवन बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर 1 ओवर एक्स के ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स के माइनस 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई की पावर 1 ओवर एक्स के। भाई आप हर रकम को ई की पावर 1 ओवर एक्स से डिवाइड करें, नो अप्लाई लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो भाई जन 1 ओवर इन्फिनिटी, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 1। अब आपको पता है सिंस एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो के, सो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लिहाजा भाई जन ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नो जरा देखिएगा एफ एक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स साइन टू एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, 1 इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। भाई एफ जीरो किसके बराबर है, 1 गिवन है। भाई एफ जीरो किसके बराबर है, 1 गिवन। अब भाई जन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स ओवर एक्स, भाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई की, तो भाई जन ये 1 होगा 2, तो भैया 2 1 के साथ जब खाएगा तो 2 हो जाएगा। अब सिंस limit x approaches to 0 f of x is not equal to f of 0, so f is not continuous at x is equal to 0। लिहाजा भैया फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा at x is equal to 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, f x बराबर sin 2x ओवर sin 3x ओवर sin 2x if x is not equal to 0 बराबर है 2/3 if x is equal to 0। भाई फंक्शन ये दिया हुआ और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दी हुई है जी। f 0 हमारे पास 2/3 सॉल्यूशन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 3x ओवर साइन 2x, तो भाई जन आपने 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, आप x को फारक करके भैया 3/2 बाहर निकाल लो, ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, तो आंसर इज 3/2। क्योंकि हमें पता है ये रूल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन x ओवर x ये 1 होता है। भाई ये इंटरनेशनल रूल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन x ओवर x क्या होगा 1, लिहाजा ये रेसिप्रोकल होगा वो भी 1 ही होगा। सो हम कह सकते हैं सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो लिहाजा फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो या डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 35, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि एफ जब एक्स पर अमल करता है तो उसका स्क्वायर कर देता है, एंड जी एक्स के दो आंसर है -4 और x मनफी 4 का मोड इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। भाई gx के दो आंसर, एक -4 एक x मनफी 4 का मोड इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। डिटरमिन वेदर f सर्कल g एंड g सर्कल f आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। भाई आपने चेक करना है f सर्कल g और g सर्कल f आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। भाई आपने फाइंड करना है f सर्कल g एंड g सर्कल f आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। भाई आपने चेक करना है f सर्कल g एंड g सर्कल f आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जी एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमारे पास है -4 और एक्स -4 का मोड इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। डिटरमिन वेदर एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। भाई चेक करना है एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ आर कंटिन्यूअस एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एफ जो है ना उसका एक आंसर है, जी के दो आंसर, एक -4 एक एक्स -4 का मोड इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। Determine whether f circle g and g circle f are continuous at x is equal to 0। जी solution f circle g into x बराबर होता है f into g of x। ये डिफाइन है f circle g into x बराबर होगा f into g of x, ये डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब gx के दो आंसर, एक -4 और एक x -4 का मोड इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन जब किसी पर अमल करता है तो उसका स्क्वायर कर देता है भाई, तो क्या होगा 16 और x -4 का होगा स्क्वायर मोड का स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। नो f सर्कल g आगे x से हमारा तैयार हो गया 16 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 x -4 मोड का स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब आपने चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। जी भाई f सर्कल g जब x पर अमल करेगा तो 16 आएगा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, x -4 का स्क्वायर आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0।
अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब 0 रखोगे तो भैया यहाँ पे क्या आएगा जी 16 जी गिवन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स एफ सर्कल जी 0 मनफी 0 लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एफ सर्कल जी इंटू एक्स। अब भैया ये वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड होगा और ये वाला फंक्शन क्या होगा राइट हैंड। भैया आई पुट 16 तो 16 आंसर। राइट हैंड लिमिट एफ सर्कल जी 0 प्लस 0 लिमिट एक्स अपोज टू 0 प्लस 0 एफ सर्कल जी इंटू एक्स जी। तो लिमिट एक्स अपोज टू 0 प्लस 0 यहाँ पे एक्स मनफी 4 मोड का स्क्वायर या होल का स्क्वायर एक ही बात। तो भाई जन 0 रखोगे तो आएगा 16। अब आपको पता सिंस एफ सर्कल जी 0 मनफी 0 बराबर है एफ सर्कल जी 0 प्लस 0 बराबर है एफ सर्कल जी 0 जी, लिहाजा एफ सर्कल जी इज कंटिन्यूस। एफ सर्कल जी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 जी। नाउ भाई जी सर्कल एफ एक्स के ऊपर जी बाहर आएगा एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी भाई, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी। जी सर्कल एफ जब एक्स पर अमल करेगा तो -4 आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, या एक्स स्क्वायर मनफी 4 का मोड आएगा इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। भाई देखो ना जी सर्कल एफ क्या बन गया जी -4 और एक्स स्क्वायर -4 का मोड जी। इस चीज को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 0 यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 जी। जी सर्कल एफ बनेगा -4 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। जी सर्कल एफ बनेगा एक्स स्क्वायर -4 का मोड इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ द, तो जी सर्कल एफ जब 0 पर अमल करते हैं तो भैया -4 आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट जी सर्कल एफ 0 मनफी 0 लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 जी सर्कल एफ जब एक्स पर अमल करेगा तो भैया -4 का मोड आएगा। तो जी जी सर्कल एफ जब एक्स पर अमल करेगा तो आएगा 4 का मोड जी, 4 का मोड तो -4 का मोड +4 हो जाएगा जी। अब आपको पता है जी सर्कल एफ डायरेक्ट वैल्यू पुट करो -4 आता है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की तो आंसर 4 आ गया। जमीन आसमान का फर्क है जी। भाई जन राइट हैंड लिमिट जब जी सर्कल एफ 0 + 0 किया तो आपके पास क्या आएगा जी सर्कल एफ के ऊपर जब फंक्शन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर -4 का मोड जब 0 रखोगे तो भैया आपका क्या आएगा जी +4 आएगा जी। भाई जन आपने जी सर्कल एफ के ऊपर राइट हैंड लिमिट अप्लाई की, आंसर आ गया 4। आपको पता है जी सर्कल एफ डायरेक्ट का आंसर इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ लेफ्ट हैंड का आंसर या राइट हैंड का आंसर, तो लिहाजा जी सर्कल एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। भैया 0 के ऊपर क्या होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा भाई। देखें अगर 100% रिजल्ट आएगा तो वी से फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज वी से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे चूंकि जी सर्कल एफ 0 का आंसर इज नॉट इक्वल टू लिमिट वाला आंसर, लिहाजा फंक्शन का होगा डिसकंटिन्यूस।